Hello everyone, a very good morning to all of you. So let's start with the analysis video for 29th of October 2023. So recently as we know कि जो गाजा वॉर चल रहा है, so regarding that यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया जिसमें इंडिया ने बेसिकली इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग ऑन दैट. So basically Indian government is defending क्या रीजन दिए गए हैं कि why India did not vote for the resolution was about humanitarian truce. So government says कि resolution that called for truce and ceasefire in Gaza did not include explicit condemnation of this terror attacks which were done on Israel by Hamas. So this was again India's stand as far as this resolution, and not voting on this is concerned. So since we know that India is basically it condemns terrorism in any form in any part of the world. So this was the main reason cited by India. So resolution में again जो चीज state की गई है, that is it had condemned all acts of violence aimed at Palestinian and Israeli civilians, including all acts of terrorism and indiscriminate attacks, as well as all acts of provocation, incitement, and destruction. And then there were other countries also who did not vote on this. So 45 countries did not vote. 120 countries basically voted on this resolution. So name of or the title of this resolution was Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations. So let's see कि और क्या basically actions लिए जाएंगे, because United Nations again so international platform where we see all the countries that are member of it, and और क्या बाकी efforts लिए जा सकते हैं, because right now we are seeing कि even USA is doing airstrikes against the installations of Iran. So basically multi-country war की तरह ये merge होता हुआ दिखाई दे रहा है, and it is again not just limited between Israel and Palestine, all Israel, Hamas. So that's there. And Israel also expands the ground war. So via land, the war is again being expanded. So right now it is escalating. तो अगर हम एमजी नरेगा की बात करें तो अराउंड 7.5% हमें डिप देखने को मिला है इन द एक्टिव वर्कफोर्स अंडर एमजी नरेगा. So जो number of active workers है under this scheme, they have dipped by 7.5%. And when we talk about again, कल हमने बात करी थी एक possible reform जो introduce किया जाएगा, the facial recognition system, so as to again properly track जो आधार एनेबल्ड फेस रिकग्निशन सिस्टम है. अभी बेसिकली जो आपके फिंगरप्रिंट्स है वो लिए जाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि राइट नाउ ये जो सिस्टम है इट इज वर्किंग इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड हरियाणा. सो इट इज बेसिकली जो रिजल्ट्स हैं दे आर गुड. सो दिस वुड बी अगेन इम्प्लीमेंटेड एट पैन इंडिया लेवल, so that again proper identification अगर आप facial recognition before starting the work and when again after your work is completed the day ends, so तब भी facial recognition scan करना important रहेगा, तो वो track करेगा and then only आपको wages pay की जाएंगी. So this is a step so that जो leakages देखी जाती हैं through this scheme उसको हम plug कर सके. And एक और as an indicator भी this data is used कि when the demand for work under the MGNREGA scheme increases, so that does not pose a good picture of the employment sector. क्योंकि अगर बाकी sectors में बाकी areas में enough jobs available होंगी, तो again MGNREGA में demand of job will not increase.
सो स्टबल बर्निंग की अगर हम इंसिडेंट्स की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में इंसिडेंट्स दे आर बेसिकली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट द केसेस और द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स दे आर राइजिंग इन द स्टेट ऑफ यूपी. सो एफर्ट्स फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, बेटर स्टबल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, यूज ऑफ डिफरेंट पैडी वैरायटीज, एंड इवन द मेथडोलॉजी ऑफ कल्टिवेशन ऑफ पैडी लाइक डायरेक्ट सीड सोइंग, उसको यूज कर सकते हैं अमंग द रीजंस फॉर दिस. एंड अगेन आप पहले हम बात करते थे कि ओनली स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स हम ज्यादा फोकस रहता था स्टेट ऑफ पंजाब पे. सो सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो है हमें डेफिनेटली स्टबल बर्निंग के जो इंसिडेंट्स है सब नॉर्दर्न स्टेट्स में मॉनिटर करना इम्पोर्टेंट हो जाता है. So ex-Hamas chief's online speech sets off row in Kerala. तो कैसे ये चीज इवन इंडिया में इम्पैक्ट कर रही है, दैट टू व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट द स्टेट ऑफ केरला. So somewhere when we talk about internal security threats or even international geopolitical wars जो चल रहे हैं उनका इंडिया पे जो डायरेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है. So this is again जो ट्रांसनेशनल लिंकेज है. This is what we are talking about, and this can be again taken as an example. So Palestinian leader and the former Hamas chief Khalid Mashal addressed online a rally which was taken out by the Solidarity Youth Movement expressing support for the Palestinian people. And the live video addressed by the former Hamas chief, it triggered a controversy amongst the state of Kerala. And again, there was demands for legal action against the organization of this rally, which was conducted in India. So अगेन यहाँ पे सोशल मीडिया का रोल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ओनली अगेन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया यूसेज एंड इट्स वाइड स्प्रेड यूसेज this basically youth movement rally was addressed by the Palestinian leader and former Hamas chief. So it's a very big thing, and definitely it needs to be again action needs to be taken against it. And it said that Hamas was a terror group, and any connection with it or support to it, it should be condemned. So Kerala was trying to glorify Hamas under the guise of Save Palestine slogan. So glorifying Hamas, and that to जब हम इंडिया के international stand की बात करते हैं, definitely we are against Hamas. And recently we also saw front page पे कि India did not vote on that particular resolution, saying कि क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है एंड बेसिकली हमस की बात नहीं की गई है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट्स व्हाई इंडिया डिड नॉट वोट ऑन इट. एंड प्लस आप केरला में देख रहे हो कि ऐसी रैलीज ऑर्गेनाइज की जा रही है व्हिच इज इन अ वे सपोर्टिंग हमस. सो दिस बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क स्पेसिफिकली इवन फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव. तो ग्लोबली अगर हम हेल्थ इश्यूज की बात करें, इमर्जिंग हेल्थ सेक्टर में क्या चैलेंजेस निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको. So from the perspective of diseases, अगर हम बात करें तो we are seeing rising spread of the lifestyle diseases or what we call as even the non-communicable diseases, like we are seeing rising number of obesity, we are seeing the cardiovascular diseases are increasing, stress, or when we talk about, the blood pressure, the BP, that's increasing, the instances of that is increasing, then diabetes, even that's going up, and that too, even in the youth population also. So from the perspective of disease, this is there. And apart from this, we can also talk about the spread of zoonotic diseases and then the evolution in the viruses also. So वो एक challenge हो जाता है because again with the evolution of virus, जो हमारी vaccines हैं, medicines हैं, उनकी competency, उनकी efficiency reduce हो जाती है. So definitely it's a direct threat to human life as well. And apart from this, when we talk about
specifically the generic medicines. India wants to project itself as a global manufacturer, global hub for the generic medicines. So even quality of drugs that we are manufacturing and exporting, that becomes very important. For that, we have this Central Drug Standard Control Organization to look into the quality standards, and National Pharmaceutical Pricing Authority as far as the prices of the drugs is concerned. Because of late जब हम अभी बात करते हैं अफ्रीका में, जो हमने कफ सिरप्स एक्सपोर्ट करे थे, it was reported कि because of some again presence of some chemicals in those cough syrups, it has caused deaths of several children. And specifically, when we talk about TB elimination, so the target year is 2025 for India. So we are again dedicatedly working for eliminating such types of diseases. चाहे आप HIV की बात करो या फिर again TB की भी आप बात कर सकते हैं. And then hepatitis B control. So इस disease से regarding again कौन सी vaccine India में हम use कौन सी कर रहे हैं, so इसके ऊपर भी prelims में already question आ चुका है. BP and diabetes की I have already mentioned this thing. And overall अगर हम बात करें health sector की, so herein the resilience and the preparedness for future epidemics and the pandemics वो और important हो जाते हैं. So few of the milestones which have been already reached and achieved includes, like when we talk about WHO, it says that the area, giving an overview of the health issues in the region. Basically, मैं बात कर रहे हैं Southeast Asia की. So herein we see कि since 2014, Southeast Asia में polio has been eliminated and maternal and neonatal tetanus has been eliminated. So 4 countries, Bhutan, Maldives, Sri Lanka, and Timor-Leste, they have completely eliminated measles and rubella, one of the 8 flagship priorities जो था. This has been achieved. Then tropically, neglected tropical diseases. Specifically, this was again एक priority थी कि जो neglected tropical diseases हैं उनको eliminate करना. So 4 countries, which is again Maldives, Sri Lanka, Thailand, and Bangladesh, they have eliminated the lymphatic filariasis. So this was one of the neglected tropical diseases, lymphatic filariasis. And Nepal, Myanmar की बात करें तो they have eliminated the trachoma, and India was verified yaws free. So these were some of the neglected tropical diseases which have been eliminated in these countries, and we can remember the name of these diseases as well as an example. So different studies have been conducted जो हमें और information minute details provide करे about internal structure of Mars. So firstly ये समझना कि हमारे लिए क्यों important है इन चीजों के बारे में जानना, हमें इससे क्या फायदा होगा, क्या benefit हो सकता है. So often जो general reasons दिए जाते हैं, that is to know about again the origin of this universe, and again कैसे यूनिवर्स इमर्ज हुआ अपार्ट फ्रॉम दिस. जब हम बात करें कि वेदर इट इज एक्सपैंडिंग और नॉट, सो डिफरेंट थ्योरीज हैं. तो मेन रीजन यही रहता है कि हम अगर ओरिजिन के बारे में ऐसा भी हमें कुछ सब्सटैंशियली नहीं पता है, सो जो हमारे मेन स्पेस मिशन रहते हैं, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट. टू अगेन पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, क्या डिफरेंट प्लैनेट्स पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती है, ह्यूमन बींग्स कैन दे सर्वाइव ओवर देयर. Then we'll look into कि क्या water available है, क्या plant growth
support की जा सकती है, the atmosphere that we have. So seismic experiment for interior structure एक experiment किया गया था. And inside Mars lander, it used this instrument. This was an instrument which is used by this to record seismic waves which were passing through Mars interior. So again, this is NASA's mission, जो Inside Mars mission था. This is part of NASA's mission, which is again USA Space Agency. So experiments के जो results हैं, they suggest कि जो Mars का core है, it has higher proportion of lighter elements that is feasible according to the estimates of the abundances of these elements early in Mars formation history. So this is a small update. So when we talk about artificial form of rainfall, जिसको हम बोलते हैं cloud seeding के through rainfall करना, again उसके क्या impacts हो सकते हैं, again cost and benefit की जब हम बात करें, so that's there. So actually अगर हम बात करें कि क्या कहीं किसी part of world में cloud seeding के through कहीं पे artificial rains कराई गई हैं कि नहीं की गई हैं, so definitely UAE में this thing was done and experimented. So approximate cost जो है of producing water through the cloud seeding, it was somewhere around 18 पैसा per liter. So ये cost और कम हो सकती है by more than 50% अगर हम indigenous seeding aircrafts use करेंगे. So again जो aircrafts use किए जाएंगे for cloud seeding, अगर वो indigenous रहेंगे तो इस पूरे process की exercise की जो cost है वो हम और कम कर सकते हैं by somewhere around 50%. So क्लाउड सीडिंग जो प्रोसेस है एंड जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए वो हमें मिल सकते हैं अगर ये पूरी एक्सरसाइज जो प्रोसेस है इसको हम करेक्टली स्टेप वाइज मैनर में प्रॉपरली करें. सो क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट्स इवन इंडिया में भी सोलापुर सिटी में किए गए थे, जहाँ पे अगेन इस सोलापुर सिटी में बहुत लेस रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है. तो टू गेट मोर रेनफॉल बात करो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. So there was again 18% increase in the rainfall over 100 square kilometer area in the Solapur city due to cloud seeding. So 18% of increase in the rainfall record की गई after this experiment was done there. कॉस्ट की हम बात कर चुके हैं. सो अराउंड 20 to 25% जो क्यूमुलस क्लाउड्स रहते हैं दे प्रोड्यूस द रेनफॉल इफ क्लाउड सीडिंग इट इज डन करेक्टली. सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, रेनफॉल क्लाउड्स कौन से रहते हैं, सो वो भी हमें पता होना इंपॉर्टेंट है. सो क्यूमुलस clouds they are responsible for the rainfall. Cloud seeding alone वो basically अगर आप बात करो mitigating the impacts of drought उसको मिटिगेट करने में हेल्प जरूर कर सकती है, बट ओनली रिलाइंग अपॉन क्लाउड सीडिंग एक पर्टिकुलर लॉन्गर टाइम पीरियड के बाद जो रेपरकशंस रहेंगे वी नीड टू बी अगेन प्रिपेयर टू डील विद दोज रेपरकशंस एज वेल. बट डेफिनेटली हमें एडिशनल रेनफॉल प्रोड्यूस करने में जरूर हेल्प कर सकती है जो हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स को भी एड्रेस कर सकते हैं. सो क्या केमिकल्स यूज किए जाते हैं क्लाउड सीडिंग के लिए? सो कैल्शियम क्लोराइड flare, it was used for seeding the clouds. Calcium chloride is chemical that is used. Seeding was done at the base of the warm convective clouds and at a time when clouds they were growing. So ये again specific details होगी which is again very important. So it is done at the base of warm and convective clouds. So study was carried out for 2 years to understand कि microphysics and क्या characteristics रहती हैं of the convective clouds जो हम again target कर सकते हैं to enhance the rainfall. And this entire work provides elaborate protocols क्या follow किए जाने चाहिए and technical guidance के ऊपर भी clarity होना is very important. Accordingly कि कौन सी ऐसी climatic conditions रहेंगी when we need to plan and execute this entire process and हम basically इस process के साथ आगे जा सकते हैं. So herein we took one example of India and we understood कि basically क्या किस तरीके से experiment किया गया और क्या minute details conditions चाहिए. Looked at calcium chloride that is required for cloud seeding and even silver iodide that is also used. The name of this experiment was Cloud Aerosol Interaction and Precipitation Enhancement Experiment.
So जो सोलापुर सिटी की लोकेशन की अगर हम बात करें तो it falls on the leeward side of Western Ghats, so that's why it gets less of rainfall. तो एक होती है leeward side, एक होती है windward side. Windward side is the one which faces the ocean, and जिसकी opposite side बची that is leeward side. So already we have taken up this topic as well. Why will police stations install the DNA systems? So क्या concerns हैं and National Crime Records Bureau ने क्या cautions issue किए हैं around this thing? So let's understand this. So plans to include DNA samples and facial recognition technology have raised questions about protection of data. So this is one concern कि जो data collect किया जाएगा उसके around basically उसको कैसे store किया जा रहा है and possibility of misusage, आप उस data को आगे कहीं नहीं use करो. So data privacy is one concern, and definitely जो हमारा upcoming even personal data protection bill है उसमें भी ये component हम बात कर सकते हैं as a part of reform. This should also be included as a part of it. सो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करता है. तो जो हमारी एक्ट भी है सीआरपीसी एक्ट, इट वाज पास बाय द पार्लियामेंट, जो अगेन रिफॉर्म्ड लॉज, क्रिमिनल लॉज हम लेके आ रहे हैं एट द सेम टाइम. सो दिस एक्ट इट एनेबल्स द पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो ये डेटा कलेक्ट, स्टोर और एनालाइज कर सकती हैं, दोनों फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरिस स्कैन्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन्स. सो अगेन इतनी पावर पुलिस के हैंड्स में स्पेसिफिकली देना है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड यस अकाउंटेबिलिटी एट द सेम टाइम. रूल्स दैट वुड गवर्न दिस एक्ट दे वर आल्सो नोटिफाइड. सो राइट नाउ दिस इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एज ऑफ नाउ, but standard operating procedures that have been laid down. And ये जो act है, जो rules है, they do not distinctly mention the collection of DNA samples and face matching procedures in the subsequent meetings with the police officials. So बाकी meetings जो हुई उसमें NCRB का ये कहना था कि जो measures हैं they will be rolled out in around 1300 locations across the country. So एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस लेजिस्लेशन की नीड क्या है, क्यों जरूरत पड़ी इसको इंट्रोड्यूस करने की, इससे हमें क्या फायदे हो सकते हैं, या पहले जो चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल रहे थे उनको सॉल्व करने में ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी या डीएनए सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करना और कैसे हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव एंड रिफॉर्म कर सकती है. सो जो हमारी सीआरपीआई एक्ट थी, दिस वाज इट रिपील्ड द ब्रिटिश एरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1920. whose scope was limited to only collecting and recording the finger impressions, footprint impressions and photographs of certain category of the convicted persons and impressions of non-convicted persons on the orders of a magistrate. So गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो अब न्यू एक्ट हम लेके आए हैं, दिस इज मेड प्रोविजंस फॉर द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. एक तो इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सो दैट टू कैप्चर एंड रिकॉर्ड एप्रोप्रिएट बॉडी मेजरमेंट्स. सो इवन जो डेटा, क्वालिटी ऑफ डेटा भी रिकॉर्ड किया जाएगा वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बेटर टारगेट कर सकते हैं एंड वहां पे भी डिस्क्रिपेंसी होने के चांसेस और हम रिड्यूस कर सकते हैं. सो एनसीआरबी का रोल क्या है? So it is basically a central body here which has been entrusted with the task to store, process, share, disseminate, and destroy the records of the measurements. So it is not just limited to only collecting and storage and the protection or sharing, but वो data को destroy भी कर सकते हैं. So even that is a part of the function of National Crime Records Bureau. सो पुलिस स्टेशन में जो भी इंप्रेशंस लिए जाएंगे वो स्टोर किए जाएंगे एक कॉमन डेटाबेस में जो मेंटेन किया जाएगा बाय द एनसीआरबी. so this is going to be very important role. so एनसीआरबी ही स्पेसिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे अबाउट द इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस जो यूज किए जाएंगे. So even हमारी जो IT एक्ट है that also became somewhere relevant to this storage of data अगर हम बात करें. So जो records हैं store किए जाएंगे for 75 years.
So right now, if we talk about the what is the current status on ground, so police across the states they've been trained. So training के ऊपर भी focus किया गया है definitely because uh, obviously you're talking about introducing the modern technology, so training becomes important. So that has been provided कि finger impressions कैसे record किए जाने चाहिए through the National Automated Fingerprint Identification System. So this is again one other new modern technology that has been introduced. So basically ये एक separate project है under the NCRB only जो हमने 2022 में launch किया था. Challenges की अगर हम बात करें तो firstly हमने बात करी protection of data एक main challenge है. And police officers in UP said कि जो rules basically issue किए गए हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो measurement रहेगा persons will be detained or arrested under the prohibitory and preventive sections of the law, they are not to be recorded, and many officers they are also not aware of this. So एक ये कंसर्न है. अगेन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं जो जिन लोगों को अरेस्ट किया गया अंडर द प्रोहिबिटरी प्रोविजंस या प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर हम बात करें तो उनका डेटा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. तो ये इतनी बड़ी पावर पुलिस ऑफिसर्स के हैंड में देना. एंड हमने बात करी ट्रेनिंग की भी, बट यहाँ पे वी आर स्टिल लैकिंग कि जो इवन प्रोविजंस हैं या जो रूल्स इशू किए गए हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी बनाए गए हैं, उनके बीच में बेसिकली अवेयरनेस ऑफ दैट डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब वो इतना रोबस्टली एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां पे एक गैप एग्जिस्ट कर रहा है. सो ये कंसर्न्स हैं. एंड डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स या इवन आर्टिकल 21 की आप बात कर सकते हो कि इट कैन लीड टू इवन वॉलेशन ऑफ दैट अगर कि ऐसे लोगों को जिनको ऐसे सेक्शंस के अंडर अरेस्ट किया गया है एंड अगर उनका डेटा भी रिकॉर्ड और कलेक्ट किया जाएगा तो. So जो owners है responsibility है of the destruction and disposal of the records of an individual from the central database in case a person has been falsely implicated in a crime or has been acquitted by the court. तो तब क्या again क्या उस पर्सन के डेटा को तभी डिस्ट्रॉय किया जाएगा या जैसे कि यहाँ पे टाइम लिमिट मेंशन है कि 75 इयर्स के लिए डेटा स्टोर किया जाएगा. सो अगर फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है किसी पर्सन को तो क्या तब भी उस इंसान का डेटा स्टोर किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए. सो यहाँ पे कुछ अगेन एम्बिग्विटी एग्जिस्ट करती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पॉक्सो एक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हैंडलिंग द डीएनए सैंपल्स रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रेनिंग. इस पे ऑल दो फोकस कर रहे हैं. स्टोरेज रहेगा दैट विल बी कंसर्न बिकॉज अगेन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक कंसर्न हो जाता है कि हमारे पास आज के टाइम में एडिक्वेट डेटा स्टोरेज सेंटर्स हैं या नहीं. सो इट बिकम्स कंपल्सरी इन ऑफेंसेस जो पॉस्को एक्ट के अंडर भी स्टोर किए जाते हैं, रजिस्टर किए जाते हैं सॉरी. सो हाउएवर जो भी स्कोप है बाकी क्राइम्स की अगर बात करें चीटिंग स्नैचिंग तो ये जो यू नो छोटे मोटे क्राइम्स होते तो क्या इस केस में भी डेटा स्टोर करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एक ही कंसर्न है. So price pressures still exist. This is again one thing. Inflation के अराउंड हम डेली बात कर रहे हैं, अपडेट्स जो भी हमें मिल रहे हैं. Inflation to dog the world economy in 2024 and it is going to delay even the rate cuts. So tight monetary policy still we are again adhering to that only. चाहे आप RBI की बात करो या इंटरनेशनल लेवल पे बात करो, यूएस फेड की बात करें. एंड एक और कंसर्न जो हम पहले भी उठा चुके हैं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए वी एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कि जो हमारी इवन इकोनॉमिस्ट का कहना है रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट्स हायर रेट पे सस्टेन करेंगे लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए. तो ये कुछ कंसर्न्स हैं. सो यहाँ पे अगेन पोल भी किया गया ऑफ 200 इकोनॉमिस्ट. उनका कहना ये है कि रेट्स विल रिमेन हायर फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड. So I think Ashik, now you can start with Indian Express newspaper.
Hello everyone. Now we are continuing with the Indian Express newspaper. We have already talked about the terror in Gaza and also how the Israel have entered into the Gaza yesterday. So India's policy is to diplomatically support Israel, but at the same time, India also supports Gaza with humanitarian principles. तो दो इनका पॉलिसी रहता है. आई थिंक कौशिक हम गाजा को नहीं सपोर्ट कर रहे बिकॉज हमस ग्रुप जो गाजा में बेस्ड है, वी आर नॉट सपोर्टिंग दी हमस. सो वी सपोर्ट द पैलेस्टीनियन कॉज आल्सो, एंड इसराइल को भी इस अटैक में जो इस सिचुएशन है, क्योंकि हाँ, हमस इसमें अटैक सपोर्ट की किया, तो. लेकिन ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल में हमने सपोर्ट किया बेसिकली पैलेस्टीनियन को. हाँ, सही, ट्रू. लेकिन डिप्लोमेटिकली वी आर सपोर्टिंग इजराइल. हम्म. यस्टरडे का जो रेजोल्यूशन में इंडिया ने हाँ, एब्सटेन किया. दैट इज ट्रू. इंडिया एक्सप्लेनेशन ऑफ द वोट डिड नॉट मेंशन हमस. सही बात है. और yesterday the vote was on for the immediate and unconditional release of all civilians and also the uh, peace in the Gaza. So that तो लेकिन इंडिया उसमें ह्यूमैनिटेरियन, सपोर्ट हाँ, नहीं किया. हाँ, ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस ह्यूमैनिटेरियन के क्राइसिस. लिए रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया, ये बोलते हुए कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है स्पेसिफिकली हमस की बात नहीं कर रहा है. हम्म. We can take this one. एक यस. second. Shortage of digital skills weighs down Nandurbar fight against malnutrition. तो basically weighing of scales is very important because it makes ASHA worker and other health worker to weigh the new infant and mothers, and it also decides कि कितना लोग, कितने बच्चे अंडर न्यूट्रिशन है, मैल न्यूट्रिशन है, और फिर कितने महिला बेसिकली इससे पीड़ित है. तो वो दिखता है इसमें. तो ये शायद एक पर्टिकुलर केस स्टडी लिया हुआ था ये, कि और मैल न्यूट्रिशन इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. तो उसमें पाया गया है कि जो चाइल्ड मोर्टालिटी है वो इंक्रीज किया है. अगर आप देखोगे 768 से 813 हुआ है. तो कैसे कम किया जाए? तो आई थिंक मानसी, व्हाट आर द स्टेप्स which we can take to reduce the child mortality and malnutrition? तो अगर फर्स्टली अनकंडीशनल तो स्टेप्स होते हैं. चाइल्ड चाइल्ड मोर्टालिटी के अगर हम पीछे रीजन समझे कि रीजन क्या है बिहाइंड द चाइल्ड डेथ्स, तो वो माल न्यूट्रिशन है. सो उसमें वी आर अगेन स्कीम्स हम रन कर रहे हैं, जब इवन लैक्टेटिंग मदर्स को हम सपोर्ट करने की बात करते हैं फाइनेंशियली, एंड इवन मेनी मदर्स दे डोंट इवन नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो. सो अवेयरनेस कैंपेन्स भी रन किए जा रहे हैं, स्कीम्स भी इसके लिए रन की जा रही हैं. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. फूड फोर्टिफिकेशन की भी हम बात करते हैं, एंड इवन जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे वेइंग स्केल्स की बात की गई है एज अ डेटा. हमें अगर पता ही नहीं होगा कि कितने लोग सफर कर रहे हैं, कौन सी ज्योग्राफी में, कौन से रीजन में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी है, तो इसको हम टारगेट करने में अगेन हमारे लिए एक प्रॉब्लम रहेगी. सो दीज आर द सर्टेन स्टेप्स जो मैं अभी के लिए आई कैन से. और दो चीज, 2 पॉइंट्स आई विल ऐड. दैट इज, जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो भी आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड बिलो 2 years और 1 years ऑफ एज. तो वो भी एक. सेकंड सेकंड वुड बी कि अर्ली जो फूड पैकेट देना चाहिए, क्योंकि जो 5 और 8 years है ना, वहीं तक बॉडी का, मेंटल, ब्रेन का ग्रोथ होता है और फिजिकल ग्रोथ होता है, बोन डेंसिटी बढ़ता है. तो 8 years तक मैक्सिमम पोषण मिलने के लिए विमेन को एक सहायता करना चाहिए, मुझे लगता है. और इवन जो उसके आईसीडी बाद ही फिर स्कीम है, इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन आल्सो, इन सब वैक्सीनेशन. के अराउंड भी. हाँ.
तो बेसिकली हाइजीन, एजुकेशन, women empowerment, they all connected to the children malnutrition and undernutrition. हम्म तो हर एक कहीं स्पीड कैमरा ऑन की रोड्स लेड टू द डीप इन फेटल एक्सीडेंट। मतलब ये पाया गया है कि स्पीड कैमरा लगने से जो एक्सीडेंट का जो इंसिडेंस है वो कम हुआ है। दिस शोकेसेस हाउ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कैन बी मेंटेन विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। According to the analysis report, the performance of 25 OSVD camera installed at a strategic location on different Delhi road इससे डिक्रीज हुआ है 19 to 60% अराउंड। हम्म तो आप देख चार्ट भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और क्या मेजर्स लिया जा सकता है मानसी इसमें? स्पीड कैमरा इज वन ऑफ द मेजर्स। हाँ, अपार्ट फ्रॉम स्पीड दैट। तो ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बस मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगी, ये जो मॉडल है स्पीड कैमरा जो इंस्टॉल किए गए मोस्टली दिल्ली एनसीआर रीजन में ही है। तो एक तो इसको पैन इंडिया लेवल पे लेके जाना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंश्योरिंग कि ये कैमराज अगेन इनकी भी पीरियोडिक असेसमेंट की जा रही है वेदर दे आर फंक्शनिंग और नॉट। तो एक ये चीज हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, और वी कैन टॉक अबाउट जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंसेज पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो अवेलेबिलिटी होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड apart from this, when we talk about even the traffic police, so ये भी दिया strategic वैसे। locations पे ट्रैफिक हम्म। पुलिस का प्रेजेंट होना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये देखा जाता है कि इतनी ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलती है ऑन रोड्स। कुछ ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन रहती है जो बहुत लेस इन नंबर रहती हैं। तो ऐसे जो ब्लाइंड स्पॉट्स है वहां पे स्पेसिफिकली प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रीट लाइटनिंग वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड इवन स्ट्रीट लाइटनिंग में भी कैसे हम उसको रेन्यूएबल एनर्जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सोलर पैनल्स जैसे हम एक स्ट्रीट लाइट के ऊपर लगा देते हैं छोटा सा, जो उसको ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। सो ये मेजर्स हमें और हेल्प कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग दी रोड एक्सीडेंट्स। ओके। तो और भी कुछ बेसिस लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे through the use of sensors and GPS we can analyze the traffic patterns and predict the congestion and dynamically regulate the traffic flow। तो एक ये हो जाता है। और स्पीड को रोकने के लिए हमें जो डेटरेंट पॉलिसी पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो पेनल्टी है थ्रू द यूज ऑफ चालान, थ्रू द यूज ऑफ स्पीड कैमरा, इट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ डेटरेंट। तो वैसे ही अगर कोई भी इसका उल्लंघन करते हैं तो उनको कम्युनिटी सर्विस देना चाहिए, मुझे लगता है 1 घंटे का या 2 घंटे का। इंडिया में कम्युनिटी एक सर्विस और वाला हाँ। कल्चर फेमस नहीं है, हम्म यूएस में ज्यादा है। तो इंडिया में भी कर सकते हैं इसको। एक और जो मेजर रीजन रहता है अगेन बिहाइंड रोड एक्सीडेंट्स वो ये है स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द नाइट टाइम पीरियड इज कि अल्कोहल कंजम्पशन एंड देन यू आर ड्राइविंग। सो उसको हम्म। प्रिवेंट करने के लिए लाइक एक मेजर इंट्रोड्यूस किया भी गया था, वो जो पंप्स। बट अगेन अवेलेबिलिटी ऑफ पुलिस का वहां पे प्रेजेंट जो ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए वो एक हमारे लिए चैलेंज हो जाता है इस चीज में। हम्म। yes। ये एक है रेरा का, इसमें आ जाएगा केस स्टडी। हम्म Next article is talking about a scores of buyers have been left hanging for years waiting to get possession of flat they spent lakhs on. Many have moved the consumer court against the builders। तो इस पर बात हो रहा है, कंज्यूमर कोर्ट का बात हो रहा है। और यह बात इसने जितेंद्र शर्मा जी हैं, वो वो बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ माय टावर हैज बीन पेंडिंग फॉर ओवर द इयर्स। आई हैव अप्रोच्ड रेरा। आई एम नॉट अलोन, अराउंड 25 ऑफ टू 50 ऑफ अस डिडंट गेट आवर फ्लैट्स। दिस शोकेसेस कि क्या क्या issues in the real estate sector and how RERA can be useful to uh, impart accountability on the business owners and also the real estate developers कि what where are the fault line। तो पहले ऑलरेडी कंज्यूमर कोर्ट ने कहा है कि दे आर क्या क्या हाईलाइट किया, उन्होंने डिफिशियंसी हाईलाइट किया है। दूसरा, कंपेंसेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द एग्जैक्ट लॉसेस एंड there is no fixed time position for mentioned contract, then the maximum 4 years delay was allowed। मतलब कि डिले होता है फ्रॉम द साइड ऑफ द डेवलपर्स, फिर उन्हें टाइम से दिया नहीं जाता है फ्लैट, डेफिशिएंसी रहता है। बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उस पर भी काम होना चाहिए।
और साथ ही साथ तो ये सब इश्यूज है। तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016, ये एक एक्ट है जो रेगुलेट करता है पूरा रियल एस्टेट सेक्टर को, और कैसे इनका रोल बढ़ जाता है ये सब केसेस में। तो ऐसा इनका पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ है। तो कैसे इसको कर सकते हैं मानसी, अगर आपको कुछ कहना है तो। मैं जब तक देख रहा हूँ कि एग्जैक्ट क्या रेरा ने कहा है इसमें। एक तो यहाँ कॉम्पनसेशन की बात तो की गई है, क्योंकि जो फंड्स हैं वो उनको मिसयूज किया जाता है बाय द डेवलपर्स। वो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे उनको हैवी लॉसेस हो जाते हैं, या इवन मनी लॉन्ड्रिंग में, या उसको इलीगल एक्टिविटीज में ज्यादा दैट फंड और द अमाउंट जो कलेक्ट किया जाता है उसको वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स का प्रोग्रेस है, कंस्ट्रक्शन है, वो स्टॉल हो जाती है। तो एज अ रिलीफ मेजर एक तो यहाँ कॉम्पनसेशन ही हो गया। उसके अलावा क्या रेरा एक्ट में कुछ हम चेंजेस या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं? क्या यहाँ पे आईबीसी का रोल भी हम बात कर सकते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड? सो वो देखने वाली एक बात हो सकती है, क्योंकि अगेन आईबीसी में ऑलरेडी केस बर्डन भी ज्यादा है, तो इवन वो एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है। बट इसको एज अ सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो दैट कैन बी लुक्ड इनटू। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और जो मेजर कंसर्न है विद द रियल एस्टेट सेक्टर, जो ऑफ लेट कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए हैं गुड़गांव में। देयर इज अ सोसाइटी कॉल्ड चिंटल्स पैराडिसो। सो नेम तो उसका पैराडिसो है, बट अगेन देखा गया कि एक ऐसा इंसिडेंट रिकॉर्ड किया गया कि रूफ जो था एक पर्टिकुलर फ्लैट का वो कोलैप्स हुआ, और वो कोलैप्स होते हुए जितने भी नीचे फ्लैट से वो सब कोलैप्स हो गए। सो जो मटेरियल यूज किया जा रहा है इन द कंस्ट्रक्शन, बिकॉज पैसा कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, मिसयूज किया जाता है, एंड जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया जा रहा है वो सस्ता मटेरियल यूज किया जाता है। तो इवन सस्टेनेबिलिटी ऑफ दीज बिल्डिंग्स, दे आर नॉट इवन सेफ टू लिव इन सच टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ पे फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली द रीजन इज इट लाइज इन द हाई सिस्मिक जोन। तो इवन अर्थक्वेक्स भी बेसिकली ऑफ लेट हायर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो सेफ्टी बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है। और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2017-18 में कि बायर का हक ज्यादा है, और जो आईबीसी कोड है उसको चेंज किया जाना चाहिए, प्रो बायर बनाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रियल एस्टेट। हम्म। और दूसरा यहाँ पर है कि एक अच्छा टर्म है कि builder used to siphon money that they received from one project and they start to invest in another project without finishing the first one। तो हम्म। ये दिखाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट बनाया जाता है लेकिन कोई कंप्लीट नहीं किया जाता है। हाँ। तो ये भी एक चैलेंज है। और एक यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की में भी एक इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जो हम बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। मतलब पहले एवरग्रीन। वाला डेट चुकाने के लिए जो पैसा उठाते हो आप बैंक से, उसको चुकाने के लिए आप और लोन लेते हो, तो उसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। तो स्ट्रेस्ड एसेट्स उसकी वजह से और इंक्रीज हो सकते हैं, और प्लस ये जो अमाउंट रहता है तो बहुत बड़ा रहता है। तो इवन स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम कैन ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड, बिकॉज अगर ऐसे इंस्टेंसेस आगे इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे तो। Caste census within 2 hours of coming to power at center promises round। सो ऐसे यहाँ इसमें पे मानसी, इसमें हाँ, इसमें मैं मतलब छोट इसको शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहना है आपका कि मेरा द यही कहना पॉलिटिशियन हैव सेड द आउट ऑफ 90 आईएएस अफसर है। ऑफिसर working in secretaries there are only 3 OBC। This showcases that OBC population is not represented well in the highest service, and they are around 50 to 55 or 60%, like we have seen in Bihar, 69% of the population, but they are not represented well in the higher service। So, do you see the system in the higher bureaucracy as unmerit, और मेरिट नहीं रहता वहां पर, या फिर उनका पास बायस रहता है टुवर्ड्स द जनरल कास्ट? ऐसा आप देखते हो? बायस मैं नहीं बोलूंगी कि बायस रहता है। प्लस जो रिजर्वेशन है वो अगेन वो उस प्रिंसिपल को अडेयर करना इम्पोर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हो, या इवन जनरली अगर आप जॉब एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बात करते हो, तो क्वालिटी को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। तो वहां पे मेरिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट
ऑन दिस बेसिस की जो बैकवर्ड कास्ट है उनका रिप्रेजेंटेशन लो है वो बढ़ाना चाहिए, तो उसको बढ़ाने के चक्कर में आप क्वालिटी के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज हैं उसको अफेक्ट कर सकते हैं। सो इवन इसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी रही है, तो बेसिकली 3 to 4 बेसिस उन्होंने क्लियरली मेंशन किए थे कि डेटा होना चाहिए एंड यू कांट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सो दिस इज वन थिंग दैट आई वुड से। एंड जनरली अगर हम दूसरा ओवरऑल बात करें, इवन पॉलिटिकल पार्टीज किन चीजों पे ज्यादा फोकस करिए, क्या कास्ट सेंसस 2 घंटे के अंदर करना आफ्टर कमिंग इनटू पावर, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है या इससे बड़े मुद्दे नहीं है आज के टाइम में इंडिया में? पांचवी मैं ऐड करूंगा 2 एरिया, ठीक है। ओके। फर्स्ट है कि अब क्वालिटी की बात की तो वहाँ वहाँ जनरल एफिशिएंसी लिखा हुआ है ना, तो वो हम्म। हो जाएगा कि दूसरा दूसरा मैं बोलूंगा इसमें कि जो बाकी जब रिप्रेजेंटेशन का है, जैसे ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, उनका एक सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि उनका जो एंट्री लेवल होता है आईएएस में, वो हम्म। जनरली देखा गया है कि 30+ होता है, 30-35 के आसपास होते हैं, क्योंकि उनके एज रिलैक्सेशन है। तो हम्म। जब वहां तक पहुंचते हैं तब तक वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि जो पैरिटी होना चाहिए एज का, वो सबका सेम होना चाहिए, ताकि जो भी लोग ऊपर तक जाए, रिटायरमेंट का एज उनका नहीं आना चाहिए। अगर 40 ईयर्स में आप घुस रहे हैं शेड्यूल कास्ट में या फिर SC ST में, हम्म। तो आपका जो हायरकी होगा वो सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी बन सकते हैं, सिर्फ 20 ईयर्स सर्विस में। उसके ऊपर तो आप रिटायर हो, हाँ। क्योंकि एज ऑफ रिटायरमेंट सेम है, एंट्री हाँ। लेकिन अलग अलग है। हम्म। तो एक सेकंड चैलेंज इसका। थर्ड वुड बी, आई थिंक कि हम लोग को बात करना चाहिए कैसे हम ओबीसी SC ST को सबसे ज्यादा रेपुटेशन दे इन द इनिशियल ईयर्स, मतलब डायरेक्ट घुसते समय, कि मैक्सिमम लोग पढ़ाई करके अब घुसे इसके अंदर में, रादर देन कि जो आपको ऊपर लेके जाए बेसिकली। अगर फॉर एग्जाम्पल 20% लोग हैं जो घुस रहे हैं सर्विस सर्विस में, तो 20% में से ही ना चयन होगा ऊपर की तरफ में, हाँ। बाकी 65% में नहीं कर सकते ना। तो आई थिंक हम लोग को फोकस करना चाहिए लोअर ब्यूरोक्रेसी और बाकी सब में, और फिर धीरे धीरे हायर ब्यूरोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं। डायरेक्टली हायर रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ा सकते हायर ब्यूरोक्रेसी में। हम्म। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम लोग देखते हैं विमेन रिप्रेजेंटेशन में, पहले हमने लोकल लेवल में स्टार्ट किया 33%, फिर धीरे धीरे हमने MP MLA का किया, उसके बाद फिर हम लोग हाईएएस सर्विस में देख रहे हैं कि IAS और IPS और हायर ब्यूरोक्रेसी चेंज हो रहा है, और धीरे धीरे आने वाले समय में जुडिशरी भी चेंज होगा। तो हम हम्म। लोग डायरेक्टली ऊपर से नहीं की, नीचे से ऊपर की, मतलब फ्रॉम बॉटम से। तो ये हम्म। मेरा 2 पॉइंट। सो इवन जो ओबीसी का लो रिप्रेजेंटेशन है, तो अब रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन है, बट जो उनको बाकी चैलेंजेस आते हैं वो इवन फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आते हैं, तो आप उस पे भी फोकस कर सकते हो इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग की रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली कैसे बढ़े उनका। रिप्रेजेंटेशन एक चैलेंज है, तो उसी हाँ। के लिए मैं बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो वो फोकस करना चाहिए, रादर देन कि लास्ट में आप उसको मतलब प्रमोट करती है। उससे जनरल हार्म हो सकता है बाकी सबका। हाँ, मतलब इस रिजर्वेशन प्रमोशन की आप बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, वो नहीं हो सकता है। वो वो नहीं किसी होना। के लिए भी नहीं होना चाहिए, SC ST। ये मेरा अपना निजी हम्म। ओपिनियन है, लेकिन जैसा होगा वैसे मैं मानूंगा। हाँ, मैं इवन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन नहीं अलाउ कर सकते हैं, तो नहीं, वो है ना, लेकिन शेड्यूल कास्ट में है ना ये चीज, हाँ, क्योंकि फिर रिजर्वेशन प्रमोशन। पार्लियामेंट ने उसको डाउन टर्न करते हुए वो एज अ लॉ अमेंडमेंट उसको पास कर दिया था, तो दैट इज व्हाई। हाँ, तो इसलिए मेरा निजी है हम्म। इसमें कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो मैं उस पर मानूंगा basically। फिर व्हाट डू यू नीड टू, ethics panel tells Mahua Mitra to appear before it on November 2। तो we can say that ethics panel कैसे काम करती है, एक it is एक committee of ethics है, it is part of the different committees in parliament, and how they ensure that ethical standards is maintained by MP, and जो गरिमा है, जो डेकोरम है पूरा पार्लियामेंट का, वो कैसे इंटैक्ट रहे, वो बात होती है। तो हम्म। इसे कोई एग्जांपल ले सकते हैं एथिक्स कमेटी का, ये केस स्टडी के हिसाब से। ठीक, एग्जांपल ले सकते हैं कैश फॉर क्वेश्चन, ये ले सकते हैं एग्जांपल। हम्म। मुझे मानसी एक क्वेश्चन मुझे हमेशा है
कि एक तो पहले बार रोजगार मेला है क्या, हर गवर्नमेंट रोजगार मेला अलग से क्यों मतलब कि उन्होंने वो इम्प्लीमेंट करते हैं या वो टेक प्लेस करते हैं, मतलब एक तरह से रोजगार मेला। एक तो थोड़ा सा यहाँ पे वो ही हो जाएगा, पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहता है कि आप अपने आप को वहां पे ऐसे शो करना चाहते हो कि आप, ताकि आप अगेन वो चीज रिकग्नाइज हो सके, एक तो ये रहता है। बट हाँ, सेपरेटली रोजगार मेला प्रोवाइड कर रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स के लिए, ट्रेडिशनल और इमर्जिंग सेक्टर्स में, तो ये एक तो ये चीज नहीं शो करता है कि देयर इज अगेन स्कैरसिटी ऑफ जॉब्स अगर आप ऐसे रोजगार मेलाज ऑर्गेनाइज भी कर रहे हो। सो बाकी तो आई डोंट थिंक इसका और कोई ऐसा कुछ एरिया में। एक बस एक्स्ट्रा बोल सकते हैं मानसी इसमें, हम्म। कि आई थिंक जो लोग होते हैं ना, वो जनरली उनको आइडिया नहीं होता है, मैक्सिमम लोग को मैं बात करूं, लोअर मिडिल क्लास और बहुत उससे भी नीचे जो होते हैं हम्म। ना, वन नंबर सेक्शन सोसाइटी और नीचे से, उनको आइडिया नहीं होता है कैसे जॉब अप्लाई करें या कैसे मुझे ये स्कीम का बेनिफिट मिले। तो आई थिंक मेरे अनुसार कि रोजगार मेला से क्या एक बताया जाता है कि क्या क्या स्कीम सरकार का है और कैसे करना चाहिए। तो आई थिंक एक जगह इतने सारे स्कीम प्रेजेंट करने से थोड़ा एक इनरोलमेंट रेशियो बढ़ जाता है, बस ये मुझे लगता है। बट क्या मतलब इन चीजों के अराउंड अवेयरनेस जनरेट की जा रही है थ्रू दीज रोजगार मेला? क्योंकि वो तो आपको बस अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं थ्रू दीज मेलाज। और रोजगार नाम है ना इसका, हम्म। हाँ इसलिए ना। कि हो सकता है कि लोग के अंदर में रहता है रोजगार मिलेगा मुझे, इसलिए रोजगार मेला में जाते हैं। तो जाते होंगे मैक्सिमम लोग। हम लोग का डिफरेंट है, मतलब बाकी लोग तो होते होंगे, जाते होंगे और फिर उसमें एनरोल करते होंगे, और किसी किसी को उसमें से मिलता होगा स्किल सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट, तो उससे बाकी लोग भी मोटिवेट होते होंगे। और इसमें एक ये भी चीज है कि जो लोग सपोज कोई एग्जाम में अपीयर हुए और फाइनल रिजल्ट आ गया बट उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं मिले, तो उसके बीच में भी जो टाइम गैप रिड्यूस करने के लिए भी रोजगार मेलाज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हम्म, ठीक। सेंटर imposes $800 ऑन टन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। तो दिस शोकेसेस कि अभी भी सेंटर के पास जो पॉलिसी है इंडिया में है, इट इज सोशलिस्ट पॉलिसी विद रिगार्डिंग टू द एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हम्म। मतलब वो देखते हैं कि इंडिया का जो अपना इंटरनल जो प्राइसेस है अनियन का, वो ज्यादा बढ़े नहीं। उससे क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है दे टेंड टू सेल अनियन आउटसाइड द कंट्री, और उससे क्राइसिस हो जाता है अनियन का इंडिया के अंदर में। तो कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है और तो नाफेड है पहली बात। हम्म। पल्सेस का होता है एफसीआई, और इसका होता है नाफेड। नहीं, पल्सेस फूड ग्रेन का होता है एफसीआई, और पल्सेस का होता है नाफेड, और अनियन और बाकी सबका भी नाफेड है। फिर- तो ये देखा गया कि जम्मू कश्मीर तो यूपी टू कर्नाटका प्रोटेस्ट फॉर पैलेस्टीन रन इनटू द पुलिस एक्शन। तो उत्तर प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी, जम्मू कश्मीर में भी, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो आई थिंक प्रोटेस्ट इज अ लेजिटिमेट सिस्टम इन द डेमोक्रेसी, और सबको पीसफुली आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं और आप अपना बात रख सकते एक ये हैं द अनटिल अनलेस वो। आर्टिकल मैंने इसको लिया है, इसमें बेसिकली ये चीज है कि आप मतलब जो प्रोटेस्ट है वो ऐसा शो किया जा रहा है कि आप पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हो, बट अल्टीमेटली लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वो हमस को सपोर्ट कर रहे हैं। सो मतलब दिस इज अगेन समवेयर लिंक टू जो हाँ, तो इंटरनल मुझे लगता है तो सिक्योरिटी। इसमें, हाँ आई एग्री विद मानसी, तो मैं हम्म। बता रहा हूँ प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, हमस को भी बीच में सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्हें बस कॉशियसली देखना चाहिए इसको। और जो भी लोग हमस को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको एक तरह से मॉनिटर करना चाहिए, क्या वो हमस को ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनको पैसा मिल रहा है, क्योंकि ये क्या जो वो उसके रैलीज भी अलावा भी organize की उसके गई है, अलावा भी कुछ कर रहे हैं। क्योंकि तो ये जो वो एक, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई है ना औशक, यहाँ पे ये देखा गया है कि जो हमस का फॉर्मर चीफ था, सोशल मीडिया के हाँ थ्रू वो भी उन्होंने केरला इस में, रैली हाँ को एड्रेस भी यार, किया है। तो वो एक कंसर्न हो जाता है ये एक्स चीफ। हाँ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे अगेन इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हो जाते हैं। तो तो आईटी आई थिंक एक्ट। तो इसका मुझे लगता है कि दो सोल्यूशन है, जैसे मानसी ने कहा है क्या चैलेंजेस है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके पास एक डेटा लिस्ट होना चाहिए, सॉर्ट की
क्या जो लोग पार्टिसिपेट ऑर्गेनाइजर है, क्या वो हम्म पैसा लेके प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, क्या वो जेन्युइनली वो पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं? वो तो हम्म जेन्युइन इंटेंट भी हो सकता है। हम्म तो जेन्युइन इंटेंट को भी साइड करें, जो अगर पैसा लेके कर रहे हैं या फिर उनका मकसद है कि लॉन्ग टर्म में एक एक ग्लोबल जो होता है ना टेररिज्म उसमें सपोर्ट करवाए, या हम्म फिर आपको भेजा यहाँ रेडिकलाइज करे, तो वो भी एक चैलेंज हो सकता है। तो हाँ, उनका स्कैनर के अंदर लेना चाहिए, और जांच जांच नहीं मतलब मॉनिटर बस करना चाहिए, कि ताकि आने वाले फ्यूचर में भी कुछ ऐसा बड़ा इशू इंडिया में नहीं हो बेसिकली। फिर आफ्टर वीजा फ्रॉड कैनेडा टू वेरीफाई द एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट। तो ये पता है मानसी आपको वीजा फ्रॉड वाला केस? नहीं ये नहीं, डिटेल्स नहीं पता मेरे को इसके पीछे। मतलब बेसिकली क्या है कि कनाडा में लोग बहुत जाते हैं फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, और क्या होता है कि जो कनाडा में लोग जाते हैं जैसे, तो हम्म उनको समय लगता है वीजा अप्रूव होने में भी, और हाँ वहाँ रहना भी है, तो उनका ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है। ये एक जनरल ट्रेंड जो हम लोग ऐसा, तुम लोगों को दिक्कत होगा, मेरे को आपको अगर कभी जाना है। लेकिन वहाँ एक मैनिपुलेशन है कनाडा में है कि अगर आप पॉलिटिकल असाइलम के लिए आते हैं, अगर आप जेन्युइनली प्रताड़ित है सरकार से, किसी की भी सरकार से, तो हाँ आपको वीजा मिलने में आसानी होता है, और आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो क्या किया ना, कि जो एक मान सिंह है, आप सर्च करेंगे कभी, तो एमपी है जो अपने देश में, हम्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सपोर्टर ऑफ खालिस्तान, प्रॉपर ओपन सपोर्टर है, मतलब वो लिखते भी हैं और प्रपोर्ट भी करते हैं कि हम्म इंडियन स्टेट ऐसा है वैसा है। तो वो क्या किए थे कि बाकी जो उनका जान पहचान में लोग है ना, वो 50,000 रुपया या फिर एक फिर धीरे 50,000 से लेकर 50 लाख के हम्म बीच में पैसा ले करके, और वो एक तरह से एफिडेविट देते थे कि इंडियन स्टेट उनको तड़पा रहा है, दे आर होता है हम्म डिस्क्रिमिनेटिंग, और फिर उनको जेल में रखने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज दे आर सपोर्टर ऑफ सिख सेपरेटिज्म। तो क्या होता, कनाडा में लोग जाते थे वही ले के सर्टिफिकेट, तो उनको लगता था कि भाई एमपी की तरफ से मिला है, इसका मतलब जेन्युइनली ऐसा कॉज है, तो हम्म उन लोग को फिर दिया जाता था, मतलब असाइलम दिया जाता था। अब हम्म, ये लेकिन पिछले साल पकड़ा गया, अच्छा। कैसा ये केस हाईलाइट हो गया मीडिया के थ्रू। हम्म ऐसा सेम हाल हुआ है कॉलेज स्टूडेंट, अभी बहुत सारा कॉलेज स्टूडेंट है, उनको एक फ्रॉडलेंट जो वेबसाइट है यू कनाडा में, वो अपना कॉलेज बना करके और साइन करके बोलता था कि तुम आ जाओ मेरे यहाँ, तुमको वीजा मिल जाएगा। तो ये हम्म एक ओवरऑल बहुत बड़ा इशू है, बहुत करोड़ों हाँ और अरबों रुपए का एक स्कैम, एक हम्म वीजा फ्रॉड, तो अभी चल रहा है कनाडा में बेसिकली। देखिए ना, 22 हाँ बिलियन यहाँ पे। डॉलर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है कनाडा में, एक्सपोर्ट हम्म ऊपर, और प्लस जो इंडिया जो खर्चा करता है 10 बिलियन डॉलर अराउंड ऑन हम्म द हाईएस्ट स्टडीज इन कनाडा। 10 बिलियन डॉलर हर साल कनाडा में सिर्फ। तो आप सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड का स्केल हो सकता है हाँ उसमें से। हम्म तो एक, तो आप इसको लिख सकते हैं कि इन द कनाडा और इंडिया रिलेशन, और इन जनरल जो होता है, हाँ मतलब हाँ प्रवासी भारतीय और होता है उसमें। तो इसमें हाँ, पी चिदम्बरम जी ने, जो एक इम्पोर्टेंट कांग्रेस लीडर है, उन्होंने कहा है वॉर्स दैट हैव नो रूल्स। अब उसमें दो हाईलाइट किया पॉइंट, पहला कि यूएन इज पावरलेस। ये सही बात है, आई एग्री विद द पॉइंट दैट यूएन का जो रोल है, अब है कि यूएन को पावर कौन देता है? यूएन का पावर वही लोग देते हैं जो यूएन को बनाए थे, फॉर हम्म एग्जाम्पल परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर। लेकिन वो क्या है कि वो 20th सेंचुरी का मॉडल है। 21st सेंचुरी में इंडिया और बाकी जो बिग कंट्रीज है उनका रोल प्ले, जैसे इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील, इनका रोल बढ़ना चाहिए, जो अभी ऐसा है नहीं। इसी कारण यूएन पावरलेस है। आपको अगर दो शॉर्ट पॉइंट में ऐड करना है मानसी, नहीं यही बोलूंगी, जैसे यहाँ पे यूएन लिखा इज है पावर। यूएन पावरलेस है, तो वी आर सीइंग कि इवन यूएसए इज गेटिंग इन्वॉल्वड इन दिस वॉर। यूएसए भी एयर स्ट्राइक्स कर रहा है ऑन बेसिकली जो ईरान की इंस्टॉलेशंस हैं। सो आप अगेन हाँ। यूएन कैसे इस वॉर को रोक सकता है? खाली रेजोल्यूशन पास करने से भी चीजें मतलब, आप ट्रूस कैसे लेके आओगे, सीज फायर कैसे लेके आओगे अगर जो पार्टीज टू द वॉर है वो ही अग्री नहीं करती हैं? हम्म, ठीक। और दूसरा का एब्सेंट है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल भी जो उनका है, वो भी एक तरह से सबको ये लोग मानते नहीं पूरा बात, वो फिर आगे बढ़ते जाता है। और एक इन्फोर्समेंट का जो पावर होता है हम्म ट्रिब्यूनल का, वो नहीं है ट्रिब्यूनल का। जो भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल यूएन क्लॉज का देखा जाए, या फिर ट्रिब्यूनल लिखा जाए, क्रिमिनल कोड का देखा जाए, बाकी जगह, हम्म तो आई थिंक जो इन्फोर्समेंट पावर कैसे बढ़ेगा जब सब लोग एक रिप्रेजेंटेशन उनका एक ओवर आर्चिंग रहे,
इंडिया भी आए उसमें, बाकी कंट्रीज भी है, तभी उनका एक वैल्यू बढ़ेगा यूएन का हाँ अमंग द वही पीपल। मतलब यूएन रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जो चेंज जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हो चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज का, इवन ग्लोबल साउथ का भी जो इम्पोर्टेंस है, जो रोल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इवन रीजन वाइज भी इम्पोर्टेंट है, अफ्रीका की हम बात कर सकते हैं। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम्म अभी राइट नाउ जैसे आपने बोला कि पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड मोर इन द हैंड्स ऑफ एडवांस्ड कंट्रीज, जो फाउंडर नेशंस थे। हम्म। अब से जो एक और जो है इस पे डिस्कशन कि लिव इन इज इन नोशन, मतलब वो गलत बात नहीं है लिव इन रिलेशनशिप। हम्म। तो आई थिंक इसमें आपका क्या ओपिनियन है कि लिव इन सही है, इट इज रॉन्ग फॉर द सोसाइटी, शॉर्ट में अगर बोलना है तो ये सब Firstly, तो I would say कि it forms a part of Article 21 of the Constitution. Apart from this, अगर मैं बोलूँ कि in terms of impacts, तो लिव इन रिलेशनशिप में भी अब एक उसको यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते हो इस चीज के लिए। मतलब ये भी देखा गया कि जो अगेन रेंट के लिए भी अगर आप जाते हो, सो आपको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। आपको इतनी इजीली रेंट पे कोई मतलब फ्लैट हो कुछ हो आपको लेना हो, तो यू आर सीन मोर विद सस्पिशन। सो इलीगल जो यूसेज इसका किया जाता है, इवन इन जो लव जिहाद भी बोल सकते हैं, सो रिलीजियस कन्वर्जन के लिए। सो जो कंसर्न्स है वो एसोसिएटेड है इसके साथ, बट एट द सेम टाइम जब आप बात करो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की, तो लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या लिव इन कपल्स को अडॉप्शन राइट्स मिलेंगी या नहीं मिलनी चाहिए, या नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक डिबेट था लिव इन रिलेशनशिप वर्सेस दी मैरिड कपल्स, तो जो कंसर्न्स हैं वो दोनों एरियाज में सेम रहेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि इवन जो मैरिड कपल्स है वहां पे भी इफ चाइल्ड इज अडॉप्टेड तो वो सेफ रहेगा। सो ये कुछ एरियाज हो सकते हैं रिगार्डिंग मतलब अडॉप्शन की। अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंस में, दोनों पार्टनर्स के लिए भी इट कैन बी good, I can say कि laying foundation for the relationship, going getting to know each other, तो उस perspective से देखे तो since it is an important part of even your right to life also, dignified life के लिए भी, so I would say this thing। तो दोनों positive negatives दोनों exist करते हैं। आई थिंक आई कैन से दैट जो अगर 21 years एंड 18 years ऑफ एज से ऊपर women एंड men, तो आई थिंक लिव इन रिलेशनशिप इज लीगल और इट इज जस्टिफाइबल अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एट द सेम टाइम जो देखा गया मैक्सिमम कि लिव इन रिलेशनशिप होता है, लेकिन उससे एक चैलेंज क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो अगर देखा जाए विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड या फिर अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस, चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक हम्म। या आउट ऑफ वेटलॉक, ठीक है, वो भी एक कॉन्सिक्वेंस है। तो जो कॉन्सिक्वेंस है लिव इन रिलेशनशिप का, क्या आप रिस्पॉन्सिबल एज अ ह्यूमन बीइंग आप इसको हम्म। फाइट कर सकते हैं? तो अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं लेकिन बहुत सारी जगह पे होता है कि लोग प्यार करते हैं छोड़ते हैं, फिर प्यार करते हैं छोड़ते हैं, फिर प्यार करते हैं छोड़ते हैं। तो आई थिंक इट इज नॉट सस्टेनेबल इन अ लॉन्गर रन। उसी के लिए मैरिज ही इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। लगा तो कहीं ना कहीं एक इसलिए साइंटिफिक दिया हुआ अपने देश में और संस्कृति में मैरिज का, कि आप एक जन के साथ ही आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकते हैं, और होना भी चाहिए जनरल। आप बदल नहीं सकते। तो लिव इन रिलेशनशिप में कोई बेसिकली है कि इंजॉयमेंट विदाउट अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है बेसिकली। क्योंकि लॉ तो सपोर्ट नहीं करता है लिव इन रिलेशनशिप को बहुत सारे केसेस में, तो विमेन का भी इशू उसमें आता है। कितने साल रहे लिव इन रिलेशनशिप में और उनको मिलेगा भी नहीं कुछ एलिमनी हो या और भी कुछ भी चीज, हाँ ये क्योंकि सारी हैं। हाँ दे आर नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द लॉ। और दूसरा क्या होता है कि जो मेल तरफ भी जो इशू होता है वो भी एक रहता ही इन जनरल। तो मैरिज ही आई थिंक इट इज द मोस्ट प्रेफरेबल चॉइस। I think we can इंडिया cut यूके it part to Ashik, we have left with less time। ओके।